Hello students, good morning to all of you. In class 12 commerce, we are studying the chapters accounting for partnership firms fundamentals, and today's our topic is capital account of partners. So let's start. I hope you all are studying very well at your home. So let's start this topic. If you have any queries regarding this topic, you can contact me or you can text me on the WhatsApp group. I will try to explain more and more if you need it. Okay student, let's see what is the capital accounts. As you know that the capital account for the making or for the starting the business, you need capital. Before investment of capital, you cannot start your business. So capital is a very basic need. You can say the blood of for the organization, or any organization which want to do business. Sometime any types of the business they want to do, they need capital. So here the meaning given that the investment made by the partners to the business is called the capital. Any investment made by the partners to the business is called the capital. Capital account is open for this purpose. Whatever the account that is prepared for this purpose is called the capital account. अब आप देखो इस अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट्स, जो भी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं कैपिटल्स की एंट्री करने के लिए, उसी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं. अकाउंट्स ओपन फॉर द पर्पस आर कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट्स आर द पर्सनल इन नेचर. शुरू में हमने आपको बताया था डेबिट क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. तो जो कैपिटल अकाउंट्स है दैट इज द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट्स. द रूल अप्लीकेबल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट विल बी एज applicable for the personal account will be applicable here also. So that is called the capital account. So it is the meaning that the investment made by the partners to the business is called the capital, and account opened for this purpose is called the capital account. Let's see item included in the capital account. ठीक है, which types of the item are included in the capital account on the debit side and on the credit side. तो आपके देखिए क्रेडिट साइड में दैट इज द बैलेंस ऑफ द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, that is the opening balance of the capital will be written here in the credit side. If the any addition made by the partners between the duration in between or in duration of the business, that will be included here in the credit side. Interest, if the any interest or the any salary or the any assets brought by the partners or the commission given to the partners, share of the profit, all these items are included in the credit side of the partner, credit side of the capital account. तो सिंपली आप समझो कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, कोई भी एडिशन हुआ कैपिटल में, आपकी कैपिटल क्या हो रही है, अब आपको देखना है कि इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो. अगर इंक्रीज हो रही कैपिटल तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही तो वो हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में. तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कोई कैपिटल, इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो वो भी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा. इफ़ यू कंट्रीब्यूटेड एनी एसेट्स ब्रॉट इन द, कोई भी एसेट्स आप बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे भी आपकी इंडिविजुअल कैपिटल इंक्रीज करेगी. आपको सैलरी मिलता है तो सैलरी भी आपके कैपिटल अकाउंट को ऐड किया जाएगा. कमीशन मिला अगर कोई, जो भी, ये भी आपके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. और कोई भी अगर आपको बिजनेस में ड्यूरेशन में, अगर कोई भी बिजनेस के टाइम पीरियड में अगर आपको कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो वो भी आपके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगा, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में राइट करेंगे. अब देखिए डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं. फर्म से आपने कोई बिजनेस से पैसा निकाला, मे बी इन कैश और काइंड,
दोनों फॉर्म में अगर आपने अपनी पूंजी को विड्रॉल किया, कैपिटल को विड्रॉल किया या फिर ड्राइंग किया, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपने इस पे इंटरेस्ट पे, अगर आपने ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे किया, वो भी आपकी कैपिटल को के बैलेंस को कम करेगा, इसलिए उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। और कोई बिजनेस में अगर लॉस हुआ, उस लॉस को भी अगर आप शेयर करें तो वो भी आपके डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ओके, तो मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल कैसे होते हैं? लेट्स सी, फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, दिस मेथड इज नोन एज अ फिक्स्ड कैपिटल। This method is known as a fixed capital as the original capital invested by the partners remain the same unless additional capital is brought in or the part of the capital is withdrawn as per the agreement। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जो भी कैपिटल हमने विड्रॉल, जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो वो कैपिटल क्या हो जाएगा? रिमेन सेम रहेगा। वो जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक हमने कोई एडिशनल कैपिटल वो बिजनेस में हमने इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया। और द पार्ट ऑफ द कैपिटल इज विड्रॉल एज ए पर एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट के थ्रू कोई भी कैपिटल को विड्रॉल किया जा रहा है एज ए परमानेंट नेचर, उस कैपिटल को ही इसके डेबिट साइड में या फिर कैपिटल को विड्रॉल किया जाएगा, जो कि इसके डेबिट साइड से शो हो जाएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या होगा कि कैपिटल जो होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल की फिक्स होगी। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई गई है तो वो इस कैपिटल को इसमें ऐड किया जाएगा। और कोई परमानेंट अगर कैपिटल का विड्रॉल हो रहा, उस विड्रॉल को ही बस इसमें हम लोग एंट्री करेंगे, जो कि एज ए फिक्स्ड विड्रॉल, फिक्स्ड या फिर परमानेंट नेचर का विड्रॉल होगा। उन्हीं विड्रॉल्स को हम लोग इसमें एंट्री को एडजस्ट करेंगे। यानी कि स्टार्टिंग में जो कैपिटल होगा वो मे बी थ्रू द लाइफ ऑफ द बिजनेस मे बी द सेम एज द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्टली ऑफर एट द टाइम ऑफ द न्यूली ओपन बिजनेस। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देखते हैं। सिंस द कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग ईयर बाय ईयर। फिक्स्ड में हमने देखा कि कैपिटल हमारी क्या होगी? फिक्स रहेगी। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के नेचर में क्या है कि स्टार्टिंग में जो कैपिटल फिक्स है वो ईयर बाय ईयर क्या करेगी? वो इंक्रीज करेगी। अगर प्रॉफिट हमारी इंक्रीज हो जाती तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट अगर हमें लॉस हो गया तो हमारी कैपिटल कम हो सकती है। तो सिंस द कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग ईयर बाय ईयर, this is known as the fluctuating capital method. This is also known as the floating capital method। यानी कि आप ये समझ जाओ स्टूडेंट्स कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में हमारे जो कैपिटल का जो बैलेंस होगा ईयर बाय ईयर वो फ्लक्चुएट करेगा, चेंज नहीं होगा। मतलब इक्वल, जैसे फिक्स्ड कैपिटल में क्या था? ये फिक्स था, एकदम इक्वल था सभी पार्टनर्स का। लेकिन फ्लक्चुएटिंग की कैपिटल के केस में तो क्या होगा? वो सेम नहीं रह करके बैलेंसेस सबके चेंज होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, फ्लक्चुएटिंग के केस में इस तरीके से चेंजेस रहेंगे। अब हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम देखें तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमारे पास है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, क्रेडिट साइड में कमीशन लिख देंगे, कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो लिख देंगे, कोई सैलरी होगा वो लिख देंगे। अब फिर इसके बाद जो भी पार्टनर्स हैं उनके बैलेंसेस को यहाँ पे टोटल करेंगे और यहाँ पे ड्राइंग लिख देंगे। अगर कोई पार्टनर ने ड्राइंग किया बिटवीन द ईयर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो, फिर उसके बाद जो बैलेंस आ जाएगा हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का, जो कि अगर हम इफ़ वी प्रिपेयर थ्रू if we adopting this method, or you can say the fluctuating method, we enter all the transaction in the one single account, that is called the fluctuating capital account।
तो इस अकाउंट में जो भी एंट्री होनी है वो चाहे ओपनिंग कैपिटल की हो, चाहे जो ओपनिंग कैपिटल की हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे कमीशन, प्रॉफिट, शेयर, सारी जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सभी एक ही अकाउंट में मेंटेन किए जाएंगे, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जो कि फ्लक्चुएटिंग नेचर का, फ्लक्चुएटिंग इन द सेंस वो कैपिटल के बैलेंस ईयर बाय ईयर चेंज होते रहेंगे। अब यहाँ पे देखें आप फिक्स्ड, if we adopt the fixed capital method, we have to prepare the two accounts, that is first is the capital account, second one is the current account. In the fixed capital method we have to prepare the two accounts capital account and current account. In the capital account we just write the opening balances on the credit side, and if there is any withdrawal or the permanent withdrawal we write here on the debit side, or if there is any introduction of the fresh capital we will write on the credit side of the capital account. And for the other purposes or the other transaction we prepare the current account for the transaction like opening balances. We will write here the opening balances of the current account, and we will write all other transactions except the capital balances of the partners. We write the interest on the drawing, we write the salary, we write the commission, we write the profit. All these transactions will be written in the credit side of the current account, and we write on the debit side of the drawing if there is any drawing made by the partners, interest on drawing और अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे हमें जो बैलेंस हमें बैलेंसिंग करने के बाद आएगा, ये हमारा करंट बैलेंस हो जाएगा करंट अकाउंट का, जो कि क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड लेते हैं तो हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक, करंट अकाउंट में जो भी अदर ट्रांजैक्शन है एक्सेप्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल और द एनी परमानेंट withdrawal or the fresh capital introduction, except these three items are included. All these items will be included in the current account of the partners if we preparing through the fixed capital method. Okay student, तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियो और ऑन द रिलेटेड टॉपिक, यू कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और ऑन द थ्रू द मैसेजेस। ओके स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।